I have already provided you the communication skill notes, whether you all have gone through it. Yes, ma'am. Okay, so start writing your notes in your notebook separately so that whenever we'll meet physically, you'll show it to me and I'll correct your copies. Okay? And Yes, ma'am. read it beforehand if you are having any kind of doubts, so that you will be able to ask me before your exams actually. Okay? Now, we'll start with today's topic is actually channels of communication. Before that, I would like to once again introduce you the technical definition of communication skill. Okay, so what is communication? If we talk about the technicality of the communication, the word communication gets its origin from the Latin word. What is the Latin word? Communis. Okay, it comes from the Latin word communis. It literally means to make कॉमन. ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो वर्ड किससे आया है? एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि क्या कहलाता है? कम्युनिस्ट. और उसका क्या मतलब होता है? टू मेक common. So when we communicate, we create a common bridge to exchange our thoughts, idea, feelings, and many things. Right? Communication is what? A transmission and reception of ideas, feelings, and attitude, both verbally and non-verbally, eliciting a response. हमने पढ़ लिया ना, कम्युनिकेशन स्किल का प्रोसेस भी पढ़ा था हमने. क्लियर? और कम्युनिकेशन स्किल की डेफिनेशंस भी देखी थी. बट अकॉर्डिंग टू नॉर्मन बी सिंगबान, he is saying that communication is what? A transmission and reception of ideas, feelings, and attitudes, both in the form of verbal and non-verbal, which eliciting a response. It is a dynamic concept underlying all kinds of living system. The definition is given by whom? Norman B. Singbal. Clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now, we'll talk about the channels of communication. Now, there are two types of channel of communication. One is what? Formal, and another one is what? Informal. So, we are having two types of channels of communication, formal and informal communication. Clear? There are precisely these two form in every organization. Clear? Every organization is having these two channel, formal and informal communication. Clear? Now, what is formal communication? Formal communication are those which are bound with all rules and regulations. Examples are order, notice and etc. ठीक है? Formal communication क्या होता है बेटा? जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें सर्टेन काइंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट्स होता है. जैसे हम ऑफिशियल ऑर्डर्स निकालते हैं, ऑफिशियल नोटिस निकालते हैं, वो किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. ठीक है. Now, what is informal communication? Informal communication includes the non-official or unregulated communication like rumors, unverified information. ठीक है. Informal communication कैसा होता है? जिसमें हमारे पास कोई ऑर्डर्स या नोटिस नहीं होते हैं ना, आपस में हम जो बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, कोई बात पास ऑन करनी है, ठीक है, जिसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, वो कैसा होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. दे बोथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये दोनों जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं. Now someone will able to tell me what is formal and informal communication? Any one of you? Or I'll take names. Anyone wants to try? मैम, Yeah. फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होते हैं जिसमें हमको सुटेबल फॉर्मेट मिलता है, जिसमें हम पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में. Okay. मैम, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस वो क्या करते हैं, रूमर्स के लिए होते हैं और जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी जाती है और ये रूमर्स के लिए होते हैं. मैम, मे आई आस्क वन क्वेश्चन? Yes.
मैम रूमर्स मतलब क्या होता है? अफवाहें। अफवाहें। हाँ। थैंक यू मैम। ओके, now it's somewhat correct, है ना? But informal communication is not only about rumors. Informal communication यानी जिसमें authenticity नहीं होती है, मतलब आपका जो higher authority होता है उसके seal sign नहीं होते हैं, तो that is means any kind of communication taking place. आप आपस में बात करते हैं, खाना खाया नहीं खाया, मैडम को जाके बोलना मैडम आज जल्दी जाना है, हायर अथॉरिटी को कुछ बताना है, कोई काम करना है, these all includes in informal कम्युनिकेशन। क्लियर? और फॉर्मल यस मैम। कम्युनिकेशन में ऑथेंटिसिटी होती है, कोई भी चीज जो होती है वो हायर अथॉरिटी के सील और साइन से निकलती है, ठीक है? दैट्स व्हाई वी विल हैव टू फॉलो सर्टेन काइंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इतने फॉलो नहीं करने होते हैं। क्लियर? जो आप आपस में बात करेंगे ना, वो क्या हो जाती है, आपकी इनफॉर्मल हो जाती है। रूमर्स इज एक्चुअली अफवाहें बहुत सारी होती है ना, इसने बोला, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, दीज आर कॉल्ड व्हाट? rumors. Clear? So both kind of communication is actually exist in an organization. Now the formal channels of communication. The formal channels of communication is what? Every organization has a formal setup which they follow. हर एक formal channel communication के लिए एक formal setup होता है हर एक organization में. The actual and valid information to be passed on. जो actual information है और जो valid information है वो pass on होती है. Again, in formal communications, the formal communications is actually broadly classified into a टू कम्युनिकेशन, है ना? अभी हमारे पास क्या था? चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, दो प्रकार के थे। कौन से थे? एक हमारे पास फॉर्मल था और एक हमारे पास इनफॉर्मल था। नाउ फॉर्मल कम्युनिकेशन भी फर्दर डिवाइड है दो में, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्लियर? और वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है वो फर्दर डिवाइड है किसमें? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन में। नाउ दीज आर दी कम्युनिकेशन चैनल, है ना? आपका अप और डाउन बता रहा है, जो मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है जो प्रॉपर सेटअप होता है, तो अप और डाउन में क्या आपकी हायरार्की फॉलो करता है, मींस एक्चुअली इट्स अ कम्युनिकेशन चैनल हायरार्की। क्लियर? तो हमारे सबसे नीचे क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं और क्लर्क होते हैं। उनके ऊपर क्या होते हैं? हमारे पास सुपरवाइजर होते हैं। सुपरवाइजर के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं? ऑफिसर्स होते हैं। ऑफिसर्स के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं? मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स के ऊपर डायरेक्टर्स होते हैं और डायरेक्टर्स के ऊपर एमडी होते हैं, विच इज नोन एज मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ठीक है? तो अगर हम कहेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स नीचे से ऊपर, और अगर हम कहेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स अप टू डाउन। क्लियर? सो this is what your channel of communication or hierarchy of communication. When you move upward from down to up, it is what? Upward communication. Yeah, someone is having any doubt? Anyone is having any doubt? नो मैम। No? Okay. Okay, so we are having this hierarchy. We need to follow hierarchy for formal communication. So this is what, when we'll go from down to up, it is upward communication, and when we come from up to down, it is what? Downward communication. Now this is what horizontal communication means. What? The communication of same level. The communication takes place at सेम लेवल। जब हम एक ही लेवल पे बात करते हैं, बराबरी में बात करते हैं, तो वो कैसा कम्युनिकेशन होता है? हॉरिजेंटल, है ना? हॉरिजेंटल मतलब क्या? आड़ी लाइन। ठीक है? तो जब हम मतलब अपने बराबर के लोगों से बात करते हैं, सेम लेवल के लोगों से बात करते हैं, तो वो कैसा कम्युनिकेशन होता है? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होता है। ये दोनों टाइप का होता है, ओरल भी होता है और रिटर्न भी होता है। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे,
ठीक है। आपका मैंने आपको हायरार्की बताई थी, तो उसमें क्या है, कैशियर है, फाइनेंशियल मैनेजर है और ब्रांच मैनेजर है। ठीक है, मतलब कैशियर के ऊपर क्या है, फाइनेंस मैनेजर, और फाइनेंस मैनेजर के ऊपर क्या है, ब्रांच मैनेजर। बट जब फाइनेंस मैनेजर के बराबर में एक मार्केटिंग मैनेजर भी है और ऑपरेशन मैनेजर भी है, तो जब इन तीनों के बीच में आपस में बात होगी तो वो कैसी कम्युनिकेशन होगी, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, when a marketing manager wants to communicate with finance manager or finance manager wants to communicate with operation manager at the same level, then this type of communication is what, in a horizontal communication. Clear? Now in office, if you are having cashier, you are having BTO or officer, and all three of them wants to communicate with each other at the same level, then this is known as what, horizontal communication. Means the communication which takes place at same level is known as horizontal communication. क्लियर? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने क्लासमेट से बात करते हैं ना, आप एक दूसरे से, पूजा, हितेश, आशीष, प्रमोद, आप लोग सब आपस में अगर बात करते हैं तो वो कैसी कम्युनिकेशन होगी, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होगी। लेकिन आप में से कोई अगर मुझसे बात करता है तो वो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि मेरा लेवल आपसे ऊपर है। मैं क्या हूँ, टीचर हूँ, और आप क्या है, स्टूडेंट है। क्लियर? Now the advantages of horizontal communication, it improves the quality of a टीम वर्क, है ना। आप अगर आपस में कोई वर्क को लेके कोऑर्डिनेट करते हैं तो उसकी क्वालिटी एनहेंस होती है टीम वर्क की। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मींस बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, इट एंश्योर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड बेटर रिजल्ट्स। क्लियर है ना। इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू एलिमिनेट मिसअंडरस्टैंडिंग, एनवी, पेटी, जेलसीज अमंग पीपल ऑफ इक्वल स्टेटस, है ना। मैंने आपको कहा कि अगर आपको कोई काम दिया जाता है और आप अपने लेवल में सारे स्टूडेंट्स एक ग्रुप बना के काम करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होता है, आपकी टीम वर्क की क्वालिटी इंप्रूव करता है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, ग्रेटर एफिशिएंसी और बेटर रिजल्ट देता है। अब मान लीजिए किसी ने किसी को, आपके ही क्लास में अगर किसी ने किसी की बुराई करी और उसको तीसरे को जाके बोला कि उसने ऐसा बोला, अगर आप आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर रखते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, एनवी नहीं होगा, पेची नहीं होगी, जेलेसी नहीं होगी, एंड यू वर्क टुगेदर एज अ गुड team. Like every coin has two sides, so we are having disadvantages of horizontal communication. What are the disadvantages? There may be a conflict between horizontal and vertical communication. Horizontal communication takes place more frequently than communication between senior and junior. So a decision taken horizontally may go against some instruction given by senior, है ना। अब जैसे आप लोगों का होता है, हम बोलते हैं डेली क्लासेस अटेंड करो, बट समटाइम्स व्हाट हैपन, आप लोग ने अपनी हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कर ली, आपने बोला नहीं जीटी करनी है, हम बोल रहे हैं क्लास अटेंड करो, सीनियर इज टेलिंग यू, वर्टिकल कम्युनिकेशन बोल रहा है आपको कि नहीं आपको क्लास अटेंड करनी है, बट आपने क्लास में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से क्या डिसाइड कर लिया, नहीं आज हमको सबको कोई किसी को भी क्लास अटेंड नहीं करनी है। तो दीज आर व्हाट दी डिसएडवांटेजेस also. At higher managerial level, horizontal communication becomes difficult when people engaged in specialized jobs use technical languages. ठीक है, हायर लेवल पे हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जब हायर लेवल अथॉरिटी अपने अपने स्पेशलाइज्ड जॉब पे काम करते हैं। Unless horizontal communication is tightly controlled, each person is made actually aware of his responsibility, a great deal of time may be wasted, है ना। अगर सही कंट्रोल नहीं हो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन का, है ना, अगर हमारी हायर अथॉरिटी हमको सही से होल्ड नहीं करें तो क्लास में हॉरिजेंटल कंट्रोल क्या, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप हमेशा गॉसिप ही करते पाए जाएंगे। क्लियर? Horizontal communication is clear to you all? Anyone is having any doubt? Is it clear? Yes, Yes, ma'am. Okay, very good. Now we'll moving forward to the vertical communication. Vertical communication, I told you before, it is a communication at different level, not at same level. Okay, the line of authority is there. Like for example, you are having one downward communication in a bank. There, one bank
communication is, example is there. You are having what? Branch manager. Branch manager के नीचे क्या है? Finance manager, और उनके नीचे क्या है? Cashier है. ठीक है. So branch manager is actually handling all three of manager, marketing, finance and operation. क्लियर. मार्केटिंग मैनेजर को बीडीओ देखना होता है, फाइनेंशियल मैनेजर को कैशियर देखना होता है, और ऑपरेशनल मैनेजर को ऑफिसर्स देखने होते हैं. और इनडायरेक्टली ब्रांच मैनेजर सबको देखता है, वेदर इट्स बीडीओ, कैशियर और ऑफिसर. ठीक है. तो ये क्या हो रहा है बेटा? ऊपर से नीचे आपकी आ रही है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चल रही है, क्या ना? ये कैसी कम्युनिकेशन होगी? वर्टिकल कम्युनिकेशन, जो खड़ी लाइन में होगी आपकी. ठीक है. सेम लेवल पे नहीं है. वी आर हैविंग कम्युनिकेशन एट डिफरेंट level. A sectional example is given here. A sectional manager is speaking to a general manager. ठीक है. तब आपकी कम्युनिकेशन कैसी होती है? वर्टिकल कम्युनिकेशन. लाइक व्हाट वी आर डूइंग इज व्हाट? वर्टिकल कम्युनिकेशन, है ना? मैं आपसे एक हायरार्की ऊपर हूँ, आप स्टूडेंट है, मैं टीचर हूँ, तो हमारी कैसी कम्युनिकेशन है? वर्टिकल कम्युनिकेशन है. क्लियर? क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, nice. Good. Now, I was telling you upward and downward communication, no? So in vertical communication you are having downward communication, like hierarchy में आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे जा रहे हैं. सबसे ऊपर कौन होता है? एमडी होता है, फिर उसके नीचे डायरेक्टर, फिर मैनेजर, फिर ऑफिसर, सुपरवाइजर और वर्कर. मतलब अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है कोई आपके, ठीक है, उन्होंने कोई आपको मैसेज पास किया, तो वो पहले किसके पास जाएगा? डायरेक्टर के पास. वो नीचे मैनेजर्स को फॉरवर्ड करेंगे, फिर ऑफिसर्स के पास जाएगा, फिर सुपरवाइजर के पास जाएगा, और फिर वर्कर के पास जाएगा. तो जो ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसा कम्युनिकेशन होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. और एक्चुअली इट इज अ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन. ओके. और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस whenever a person belonging to a higher position, the line of authority communicates with a person belonging to the lower levels of हायरार्की. ठीक है. जैसे स्टाफ मीटिंग्स होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, सर्कुलर होते हैं, नोटिस होते हैं, ये क्या है? सब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं. Clear? Again, the advantages of downward communication, it helps to maintain discipline within an organization, है ना? ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अच्छा होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. ठीक है. अथॉरिटी क्लियर कट डिफाइन कर सकती है, डिटरमाइन कर सकती है हर एक पर्सन को, है ना? इमीडिएट सीनियर को अकाउंटेबल भी कर सकती है. सीनियर ऑल्सो नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी दे विल, and they are confident while issuing instruction and order to junior. The disadvantages of it is what? In downward communication, the lines of communication are often टू लॉन्ग, है ना? कोई जैसे हमारे नोटिस एमडी ने पास किया, हमारे तक पहुंचते पहुंचते क्या हो रहा है? 3 दिन हो गए. तो इट विल टेक टाइम्स एज वेल. मैसेजेस गेट डिस्टॉर्टेड समटाइम्स. ठीक है ना? होता है ना? ऊपर से नीचे तक आते आते जो एक्चुअल मैसेज था वो गायब हो जाता है ना? आपके साथ होता है ना? इसने आशीष ने कुछ पूजा को बोला, पूजा ने कुछ हितेश को बोला, हितेश ने कुछ प्रमोद को बोला, तो जो एक्चुअल आशीष ने बोला था वो प्रमोद तक पहुंचा ही नहीं. So the messages are distorted sometimes. Some information is confidential and cannot be communicated downwards, है ना? काफी सारी information जो है वो confidential होती है और downwards level तक नहीं आती है. Now इसका opposite, downward का opposite क्या होगा आपका? Upward communication. When एक worker से supervisor के पास जाएगा, supervisor से officer के ऊपर manager, director, MD. जब हम नीचे से ऊपर communicate करते हैं, the flow of communication from lower level to higher level, then it is known as what? Upward communication. And upward communication is actually essential to manager informed about the progress of work. Example, supervisor advising officer. ठीक है. In some organization, open door policy is followed for upward communication. Open door policy मतलब कि हर कोई फ्री है अपने अपने व्यू देने के लिए. Then it is known as what? Upward communication. What are the advantages of upward communication? It is a part of two-way process which promotes better understanding between management and
employees, and upward communication develops what employer employee relationship. ये ज़्यादा अच्छा होता है ना, आपस में employer और management में strong bonding हो जाती है if you are having upward communication. Disadvantages, only agreeable information is communicated upward, है ना, आपको नीचे वाले जो होते हैं वो हर कुछ नहीं बोल सकते. Whatever agreeable information you can communicate this to towards the higher authority. And upward communication tends to travel slowly as it is diluted or edited at each level before it is सेंडेड, है ना. आप नीचे वाले जो है ऊपर कुछ बात पहुंचाना चाहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर तक, तो समटाइम्स हायर अथॉरिटी डू नॉट वांट आवर इंफॉर्मेशन टू गो टू दी अदर हायर लेवल. सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है. यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? Anyone is having any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So someone can explain me till here कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी? No. Okay. How many types of channels are there? 2 types of, ma'am. What are they? Formal communication and informal communication. Right. Very good. Now, in formal communication, how many types are there? Ma'am, in formal communication there are 2 types, horizontal and vertical. And in vertical, ma'am, there are also 2 types, downward communication and upward communication. Very good. Now, this is what? It is downward and upward communication. Downward communication में मैम ऊपर से नीचे तक आते हैं और upward communication में नीचे से ऊपर जाते हैं. Very good. Nice. Clear. What is horizontal communication? मैम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सेम लेवल में होती है. जैसे मैम फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर जो है, फाइनेंस मैनेजर जो होता है अपने सेम लेवल में वो सेम लेवल में बात करते हैं. जैसे मार्केटिंग मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर, जैसे Right. कैशियर मैम बीडीओ से और ऑफिसर से सेम लेवल में बात करते हैं. Okay. Good. Now, someone else will tell me what is vertical communication apart from Hitesh. मैम वर्टिकल कम्युनिकेशन मीन्स मतलब मैम जो अपवर्ड से नीचे तक आते हैं, जैसे कि ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और कैशियर. वेरी गुड. ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों डायरेक्शन में होता है बेटा, है ना? यस, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है. वेरी गुड. यस. नाउ एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई? नाउ एट लास्ट हु वांट्स टू एडमिट देयर सेल्फ? क्लियर है बेटा? किसी को और किसी को डाउट? Now in next class we'll learn about informal communication. Today I'll be ending with this class. Please writing your notes in your notebook so that you'll be able to have a grasp of communication skill and try to communicate also. Clear? Yes, Thank you ma'am. so much for today's class. We'll meet next week. Okay? Thank you. Okay, ma'am.